हे गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम किंचित बालदिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने इन तीनों वीडियो में से कोई भी वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद आप उसे देख लेना। सो गाइस, वी विल बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट्स सी व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So before beginning with cross multiplication method, we will see what we have studied in previous lecture. In previous lecture, we have seen that A, B, C are real numbers and they not belong to 0. X, Y are variables. General form of equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the highest degree is 1. So this all we have studied in previous lectures. So today we will study a new topic, that is cross multiplication method. So what is cross multiplication method? As the name suggests, cross multiplication. Multiplication means we have to multiply cross, that is cross, as the sign suggests of the multiplication. So we have two equations, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x we will write here a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here we have written the two equations. Now what we have to do? In cross multiplication, we will multiply the cross coefficients, that is a1 b2 a2 b1 b1 c2 b2 c1 a1 c2 a2 c1 respectively. Now we will see how to multiply these equations. So here two equations are given, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, that is equation 1, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, that is equation 2. So we can solve it in shortcut way also, in the long way also. So we will study both the methods to solve the equation. So we will see first by solving the equation by substitution method या elimination method या mathematical operation. So here what we will do, we will multiply equation 1 by b2 and equation 2 by b1. So by b2 and by b1, therefore b1 into a1x, that is b1 a1x plus b2 into b1y plus b1 c1 equal to 0. This will be our equation 3, and sorry, here it will come b2 b1 a2x plus b1 b2y plus b1 c2 equal to 0. This will be our equation 4. So what we have seen that b2 b1y and b1 b2y are similar. So we will subtract them. Subtracting equation 4 from 3, we get, so what we will get? This will get eliminate. Therefore a1 b2x a1 b2 minus a2 b1 plus b2 c1 minus b1 c2 is equal to 0. Therefore a1 b2 minus a2 b1 x is equal to minus b2 c1 minus b1 c2. Therefore a1 b2 minus a2 b1 x equal to minus into b2 c1 minus b2 c1, minus into minus
प्लस B1 C2। तो अभी हम लोग को पता चला A1 B2 माइनस A2 B1 X इज इक्वल टू माइनस B2 C1 प्लस B1 C2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B2 माइनस A2 B1 X इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1। ऐसा लिखिए तो भी चलेगा, बस खाली हम लोग ने इंटरचेंज किया है वैल्यूज़ को। देयरफॉर X इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो हम लोग को X का वैल्यू मिल गया B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये फर्स्ट थिंग मिल गया, डेट इज X का वैल्यू मिल गया। अभी Y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपने देखो इन दिस वी हैव सीन दैट वी हैव एलिमिनेट Y एंड देन वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ X। तो अभी हम लोग X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Y में। सो पुट द वैल्यू ऑफ X इन equation 1 we get, so we will write what is our first equation, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Now substituting the value of x in equation 1, therefore a1, what is the value of x, b1 c2 minus b2 c1 upon A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू। सो देयरफॉर अभी y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग y को इधर ही रखेंगे B1y इक्वल टू प्लस C1 है, यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो माइनस C1। सो माइनस C1 प्लस A1 है तो शिफ्ट होएगा माइनस A1 होल ब्रैकेट को कॉपी करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देयरफॉर B1y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए C1 प्लस A1 B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अभी हम लोग को सॉरी तो अभी हम लोग को ये आ गया। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने पहले रूल पढ़ा था बॉडमास का, तो पहले ब्रैकेट सॉल्विंग करना है। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर B1y इक्वल टू माइनस C1 प्लस A1 इंटू B1 C2 A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1 होल अपॉन ये ऐसे टीज कॉपी होएगा A1 B2 माइनस A2 B1। देयरफॉर B1y इज इक्वल टू माइनस अभी इन सब को अगर मेरे को इक्वेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेगा। C1 के कुछ नहीं है, मतलब 1 क्या है, मिस्टर इंडियन। देयरफॉर C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 B1 C1 माइनस A1 B2 C1 होल अपॉन डिनोमिनेटर सेम ही होएगा A1 B2 माइनस A2 B1। So we have got this equation. Now we will further solve it, which is equal to, first we will open this bracket, minus C1 into A1 B2, that is
C1 A2 B1. We can write in this way also, A1 B2 C1 minus A2 B1 C1 plus, we will open this bracket, A1 B1 C1 minus A1 B2 C1 whole upon A1 B2 minus A2 B1, which is equal to, now in the numerator there is something similar, A1 B2 C1 minus A1 B2 C1 and A1 B2 C1, so it will get eliminated. Therefore B1 y is equal to minus A2 B1 C1 plus A1 B1 C1 whole upon A1 B2 minus A2 B1, which is equal to, now we have to find the value of y, not B1 y. Therefore y is equal to minus, now here B1 is common, we will take out B1 y, you will come to know the reason further. Therefore y is equal to minus B1 minus A2 C1 plus A1 C1 whole upon A1 B2 minus A2 B1 into 1 upon B1. So B1 gets eliminated, which is, now we will write here y is equal to, now we will open the bracket, minus into minus plus, so y is equal to A2 C1 minus into plus minus A1 C1 whole upon A1 B2 minus A2 B1. So we have got the value of y. So we have got the value of x and y by solving it through equation method. Now we will see the shortcut method of finding the values of x and y. तो अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे x और y की वैल्यूज फाइंड करने को. सो वी हैव गिवन हियर टू इक्वेशंस. नाउ वी विल अप्लाई दी 2 3 1 2 method for finding the values of x and y. So we will see how this method is applied. So what is given here? X, y, and this first variable we have got x, second variable we have got y, and third is constant. So for constant we will write 1. So we will apply now 2 3 1 2 method. So we will write here 2 3 1 2. So what is this 2 3 1 2 method? So here it will come, the number is 2. So we have to write the values of second variable, that is y. So what is the variable coefficient of y? b1 b2. So for second we have written b1 b2. So similarly we will write here also b1 b2. Now here it is written 3. So what is 3? This constant 1 2 and 3. So this is constant, that is c1 c2. And what is first? The coefficient of first variable, that is x, a1 a2. So a1 a2. So this is 2 3 1 2 method for finding the values of x and y. So but we have to now cross multiply this into this, this into this, and this into this. So therefore x upon, so what we have multiplied? b1 c2, b1 c2.
माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन A2 C1 माइनस A1 C2 is equal to 1 whole upon A1 B2 minus A2 B1. So we have got the value, we have got it x, y and z, x, y and 1 are equal. So now we will take, therefore x upon B1 C2 minus B2 C1 is equal to 1 upon A1 B2 minus A2 B1. Therefore x is equal to B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1. So we have got the value of x. Similarly for y, so here it is given as y and this. Therefore for y we will this value will shift here. Therefore y is equal to A2 C1 minus A1 C2 upon A1 B2 minus A2 B1. So in this shortcut method, that is 2312 method, we have got the values of x and y. So by comparing from the long cut method, this method is very easy, time saving and quick method, which will help you to find the values of x and y in a stipulated time and make your equations easier. So we can say that cross multiplication method is a formula given to find the values of x and y by using these formulas. So we have got the values of x and y, that is x, the value of x is B1 C2 minus B2 C1 upon A1 B2 minus A2 B1, and for value of y is A2 C1 minus A1 C2 upon A1 B2 minus A2 B1. So there is one thing similar. The denominators are same. So denominators are same, and you always know that in a fraction the denominator should not equal to 0. So this value should not equal to 0. If this value is equal to 0, then the variables doesn't exist. If variables doesn't exist, then equation also doesn't exist. So we have to keep in mind that this should not equal to 0. If this equals to 0, then equation doesn't exist. Now you have one doubt that how to learn this formula. So there is a trick for learning this formula. तो हम लोग वो ट्रिक को देखते हैं. अभी डिनोमिनेटर तो सेम है सबका, ये हमको पता चल गया. तो अभी न्यूमरेटर को कैसे याद रखेंगे. तो अभी इधर x और y है, तो जब भी आप x का फॉर्मूला लिखो तो उसमें B1 B2 C1 C2, तो b का जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो तो डिनोमिनेटर आपको पता है क्योंकि x और y का सेम है तो वो याद रह जाएगा. बट x का जब न्यूमरेटर लिखते हो तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है A1 और A2, वो डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे. जिसका भी आप फॉर्मूला लिखते हो ना, वो वेरिएबल का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में नहीं आएगा. तो अभी हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे. B1 C2 और B2 C1, B1 C2 B2 C1, B1 C2 और B2 C1, ये हो गया x के लिए. और y के लिए, अभी y के साथ क्या था, B1 y एंड B2 y, तो y के साथ b था एज अ कोएफिशिएंट. तो हम लोग लिखेंगे A1 A2 C1 C2, इसको ऐसे लिखेंगे C1 C2 A1 A2 C1 इंटू A2 C1 A1 C2. तो हम लोग को ऐसे x और y के
फॉर्मूलाज को याद रखने, डिनोमिनेटर सेम है और x का जब भी फॉर्मूला लिखते हो तो x का कोएफिशिएंट नहीं आएगा न्यूमरेटर में, y का फॉर्मूला लिखते हो तो y का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में नहीं आएगा। इस तरह हमने x और y के फॉर्मूलाज को याद किया। तो अभी हम लोग ने देखा था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इफ डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो एंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस? So we will see in the first case that a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. Therefore, a1 b2 is not equal to a2 b1. Therefore, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So we have got that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अभी यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या है? यूनिक मतलब क्या होता है? एकदम अलग से हट के, तो इसका सोल्यूशन भी एकदम अलग आएगा। अभी यूनिक कोई एक ही चीज़ होता है, तो जब भी ये क्राइटेरिया आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उसका सोल्यूशन एक ही होएगा। तो जब भी हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं जब इक्वेशंस को, जो ये पॉइंट होएगा ना, ये सोल्यूशन होएगा इसका। यूनिक सोल्यूशन को अगर याद रखने का है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही सोल्यूशन होता है, इसके लिए यूनिक सोल्यूशन बोला है। अभी सेकंड केस देखते, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आया है, तो दोनों सेम है, तो हम लोग उसको लेट अज्यूम करेंगे। लेट नहीं लेते, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू k एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k। Therefore, a1 is equal to k a2 and b1 is equal to k b2। तो अभी हम लोग को a1 और a2 b1 के वैल्यूज आ गए, तो अभी हम लोग इसको इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में भी कर सकते, तो हम लोग इक्वेशन 1 में करते। तो इक्वेशन 1 क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अभी a1 का वैल्यू क्या है? a1 का वैल्यू है ka2 एंड b1 का वैल्यू है kb2। देयरफॉर ka2 x प्लस kb2 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर के कॉमन है दोनों में, a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो अभी a2x और b2y को आप लोग ने देखा होगा सेकेंड इक्वेशन में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर के a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c1। इसको हम लोग RHS में शिफ्ट कर लेंगे, माइनस c1। तो ये हम लोग क्या, हमारा तीसरा इक्वेशन। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते। सेकेंड इक्वेशन हमारा ये था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए? k a2x प्लस b2y, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय k। तो k से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो अभी हम लोग को क्या मिलेगा? k a2x प्लस b2y प्लस
के सी टू इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग को पता है के ए टू एक्स प्लस बी टू वाई का वैल्यू है -c1, देयरफॉर -c1 प्लस के सी टू इक्वल टू 0। देयरफॉर अब इसको शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर के सी टू इज इक्वल टू c1, देयरफॉर के इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो k का वैल्यू c1 अपॉन c2 है, तो हम लोग ने पहले देखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k। तब k की जगह मैं ये लिख सकता हूँ c1 अपॉन c2। तो जब मेरे तीनों चीज़ इक्वल है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये तीनों इक्वल है, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि सबके सोल्यूशन सेम है मेरे इक्वेशन के। मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन का x और y का वैल्यू 2 और 3 आ रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन का भी x और y का वैल्यू आएगा 2 और 3। तो ये क्या हो रहा है, 2 और 3 सेम आ रहा है, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें क्या आएगा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो सॉल्यूशंस आएंगे उसके इनफाइनाइट आएंगे, मतलब ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस। सो गाइस हम लोग ने देखा कि जब c1 इज इक्वल टू c2 हुआ तो हम लोग के जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट है। अब देखते हैं जब c1 इज नॉट इक्वल टू के c2, देयरफॉर c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू k। जब k से इक्वल ही नहीं है तो हम लोग ने देखा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k, बट k इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन आती है तो इसके सॉल्यूशंस हो गए नो सॉल्यूशन। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यह है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन कैसे, हाउ, बिकॉज द टू इक्वेशंस आर parallel to each other. If two equations are parallel to each other, then we cannot find the values of x and y, so no solution. So guys, two equations we are given here, that is 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y is equal to 40. So what we have to find, whether the equation have unique solution, infinite solution or no solution. So how we will find it? Now we will find what is a1 and a2. So our a1 upon a2. So what is a1? 3, a2 is 6. b1 upon b2. b1 is minus 5 and b2 is minus 10. c1 upon c2 is equal to 20 upon 40. So we have got the values of a1, a2, b1, b2 and c1, c2. Now we will reduce them to their lowest term. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, which is equal to 1 by 2. Minus minus get cancelled. 5 1s are 5, 5 2s are 10. Now 20 upon 40. So 0 0 gets cancelled. 2 1s are 2, 2 2s are 4, which is equal to 1 by 2. So what we have got here? Since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore the equation has
infinite solutions. So the equations have infinite solutions. So अभी हम लोग सेकेंड सम देखते हैं. सेकेंड सम क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. तो अभी हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है. फर्स्ट, क्या वो ये तीनों सोल्यूशन में से कोई एक सोल्यूशन है, एंड सेकेंड एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो अभी हम लोग फर्स्ट फाइंड करेंगे क्या है ये, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन. तो चेक करते. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 2. Since a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore the equation has unique solution. तो अभी हम लोग को इधर ही पता चलेगा कि a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2. ये तो शुरू होने से पहले ही पूरा हो गया. तो इसके सोल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशंस. तो अभी हम लोग को फर्स्ट चीज़ मिल गया. अभी हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो हमको पता चला कि ये इक्वेशन की यूनिक सोल्यूशन है. यूनिक मतलब एक. तो अभी एक सोल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा हमको. तो अभी हम लोग को फाइंड करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से. तो इसके लिए पहले हम लोग को इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो हम लोग ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया, उसके वैल्यूज़ भी लिख दिए. तो अभी हम लोग एक्स और वाई का फॉर्मूला याद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में. तो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. एंड y का फॉर्मूला क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a2 c1 माइनस a1 c2. तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने. तो अभी हम लोग सम को सॉल्व करते हैं. तो अभी हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर x इक्वल टू और y इक्वल टू, अभी x का क्या है, पहले b1 क्या है 1 इंटू c2 क्या है -8 माइनस b2 क्या है 2, c1 क्या है -5 होल अपॉन a1 b2. a1 is 2, b2 is 2 माइनस a2 क्या है 3, b1 1, which is equal to 1 into 8 -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 होल अपॉन 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, which is equal to 10 minus 8 2, 4 minus 3 1. सो हमको x का वैल्यू मिल गया. therefore x is equal to 2. अभी हम लोग y का सोल्यूशन फाइंड करेंगे. तो अभी हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम लोग ने देखा था डिनोमिनेटर का वैल्यू आ रहा है 1. सो हम लोग डायरेक्ट 1 लिख देंगे डिनोमिनेटर की जगह. अभी a2 का वैल्यू क्या है 2, c1 का वैल्यू -5 माइनस a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू है 3,
C1 का वैल्यू है -5, A2 का वैल्यू, A1 का वैल्यू है 2 और C2 का वैल्यू है -8, विच इज इक्वल टू -5 इंटू 3 -15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 16, तो 16 माइनस 15 अपॉन 1 विच इज़ 1 अपॉन 1 is equal to 1. So therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution for the above given equation. अभी आप लोग इसका वैल्यू को क्रॉस चेक करने के लिए इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखते। अभी x की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4, y की वैल्यू +1 5, आंसर करेक्ट। 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2 6, 2 इंटू वाई 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 6 + 2 8, चेक। तो इससे हमको एक्स और वाई का सोल्यूशन मिल गया। तो आपने देखा कि एक्स और वाई का जब हम लोग ने सोल्यूशन फाइंड किया तो हम लोग को इतना टाइम नहीं लगा एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। I hope you all understand this concept. If you understand this concept, there is a challenge for you. So there is a brain freezing sum which is displayed on the screen. You can share this with your friend and try this at home. The answer will be released in the next video. अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @educatescape_। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।